Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat. So here I am back again with the signals going off and on, but still I'm just going to continue with my session. So आज का जो session है I am holding it after quite some time. बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत लंबे अरसे बाद वापस आ रही हूँ, but it wasn't that much. It was I guess just a week or so का time period था. So now that I'm live again, so आज का जो सेशन है it's again it's going to be something which is going to add a lot of value into the lives of working moms. चाहे आप जो है working moms हैं, चाहे आप stay at home moms हैं, या even if you're somewhere in between. So this session is for you people. And why do I say this session is for you people? क्योंकि आज का जो सेशन है I'm going to talk about the guilt जिससे जो moms हैं they battle with that guilt. And we are going to talk about कि किस तरीके से we can embrace the future with excitement. So don't feel guilty. And you know what, I'm sure कि no matter जिस भी age bracket में आप हैं, if you are moms or if you are stay at home moms या you are working moms, this is something, this ये जो pain है, ये जो ache है, you must have felt this pain somewhere kabhi na kabhi, and you might have gone through it. And then again, this is the pain jo ki aati hai when just for a moment, just for a second, you think about yourself rather than your children, and then again you think कि was I being selfish. So ये सब जो है किस तरह categorize किया जा सकता है, and like it's a thinking process, and when you go through that thing you exactly know कि भाई whatever you have done, it does not come under selfishness. So ये एक guilt है. So I'm going to discuss the guilt factor जो कि moms को अक्सर औकात होती है. यूसुफ खान, वालेकुम अस्सलाम, and thank you so much for joining and watching my session. Yes. Okay. So आप लोगों का जो है आज के टॉपिक के हवाले से क्या ख्याल है? Obviously आप लोग जो है बहुत सी यहाँ पर मेरे भाई हजरात भी हैं, बहनें भी हैं, और बहुत सी जो है ख़वातीन भी हैं, बहनें, ख़वातीन. यस, सो इट्स वेरियस जेंडर्स हैं यहाँ पर, यानी किसी भी एज ब्रैकेट से हैं. कैन बी फ्रॉम अ वेरी यंगर एज ब्रैकेट, कैन बी फ्रॉम अ वेरी एडवांस एज ब्रैकेट. So what, age is just a number. We all are in the growing and learning phase, and we keep on updating our knowledge, updating our skills, and we try to learn from each another. So आज का जो session है, it's also a learning session. It's a learning session for those mothers, those working women, stay at home moms जो कि ये guilt feel करती हैं कि कहीं उन्होंने अपने ऊपर जो है तवज्जो देकर जो है कोई सेल्फिशनेस का मुजाहिरा तो नहीं किया, रादर देन अपने बच्चों पे फोकस करने के. सो दिस इज़ द फैक्टर, द गिल्ट फैक्टर विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. ओके, सो यू नो व्हाट, जब हम बात करते हैं गिल्ट मॉम की, व्हाट डू यू थिंक इज़ अ गिल्ट मॉम? आप लोगों के जो है ऑब्वियसली व्हेन यू एज किड्स वर ग्रोइंग अप, आपके भी जो है पेरेंट्स होंगे जो कि हो सकता है दोनों पेरेंट्स में से या तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो या फिर यह है कोई एक पेरेंट वर्किंग हो. सो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट सिनेरियो कि भाई पेरेंट्स का जो है आपस में क्या रोल था, हाउ डिड द पेरेंट्स फील, आपस में उनके क्या इंट्रैक्शन थे, हाउ डिड योर मदर फील. क्योंकि बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मॉम्स जो कि गिल्टी फील करती हैं, इट्स नॉट द फादर्स जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ. येस, उस पर भी जो है आई वुड टॉक सम अदर डे कि जो सिंगल फादर्स होते हैं, डू दे हैव दिस काइंड ऑफ गिल्ट, So you can apply these things on the other gender as well, but I'm going to specifically talk about moms. Okay, Jan Yar Ali, good evening to you as well, and thank you so much. आप तो बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे मेरे लाइव सेशंस का. So इतना भी मैं जो हूँ टाइम के लिए नहीं गई कि आपको जो है याद आनी शुरू हो जाऊँ कि भाई लाइव सेशंस बड़े अरसे से नहीं हुए. So even if I'm not taking the live sessions, but still you can always watch my videos on YouTube, और उससे भी जो है आपको बहुत कुछ learn करने को मिल जाता है. But then whenever I'm live, obviously at the back end I'm thinking about something, planning about something. Whenever I go live, this is something which needs to be discussed. This is something which adds value to people, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुका है.
पीपल प्रेफर कि भाई डिजिटल वर्ल्ड में किस तरह लर्निंग की जा सकती है, किस तरह अपने आप को जो डे टू डे स्किल्स हैं उसके साथ इक्विप किया जा सकता है, सो दे कैन बी एट पावर विद दी कमिंग फोर्थ टेक्नोलॉजीज़, और वो अपने आप को जो है किसी भी लिहाज से पीछे ना महसूस करें। ओके, सो कमिंग बैक टू माई टॉपिक, अब जब हम बात करते हैं ना मॉम्स गिल्ट की, यू मोस्ट वेलकम जान जार अली। ओके, सो जब हम मॉम की गिल्ट की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है वो गिल्ट? वो एक नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन होता है जो कि जहन में आता है, और वो जहन में क्या चीज़ आती है, यू जस्ट हैव टू कीप योर इमेजिनेशन, कीप योर माइंड्स ओपन, क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग टू से द वर्ड्स एंड आई वांट यू टू इमेजिन। सो आपके घर में जो भी ख़वातीन हैं जो कि वर्किंग हैं या स्टे एट होम मॉम्स हैं या जस्ट मॉम्स हैं, कोई काम नहीं कर रही बट स्टे एट होम मॉम्स तो हैं, सो जस्ट कीप देम इन माइंड। इवन अगर आपके जो है बेटर हाउस भी हैं, लाइफ पार्टनर्स भी हैं हु आर मदर्स, सो जस्ट थिंक अबाउट दोज। ये जो छोटा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है जो कि जहन में आता है कि किसी भी खातून के, डिड आई डू इनफ टुडे? अब ये बज़ाहिर तो एक बहुत ही मामूली सा, बहुत ही नन्ना सा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट एक पूरा समंदर समाया हुआ है। और वो समंदर किस तरह समाया हुआ है कि एक जो माँ है, एक जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मॉम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब आप जो है जस्ट इमेजिन करें, येस आई वांट यू टू पुट इन योर सजेशंस एंड योर कमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक कि जो स्टे एट होम मॉम्स हैं, डू दे डू एनी वर्क या दे आर जस्ट स्टे एट होम मॉम्स? क्योंकि बहुत से लोगों के ये मिसकंसेप्शंस हैं कि जो ख़वातीन जो है घर पे होती हैं या रिमोट वर्किंग सेटअप में होती हैं, उनका कोई ज़्यादा करने वाला काम नहीं होता। सो ऑल डे लॉन्ग दे आर पीपल थिंक दे आर डूइंग नथिंग, या फिर पीपल थिंक कि भाई दे आर जस्ट स्क्रोलिंग दी सोशल मीडिया एंड दे डू नॉट हैव इनफ टू डू, cause then again and again you get texts from people who keep on asking you कि भाई अच्छा जी आप सोशल मीडिया पे काम करती हैं, आप क्या काम करती हैं, या आप वैसे क्या काम करती हैं। ओके, अगर आप स्टे एट होम मॉम हैं तो फिर आपका जो है दिन में तो ज़्यादा टाइम फ्री होता होगा, दिस एंड दैट। सो देयर आर अ लॉट मैनी misconceptions and there's a lot of myths associated with stay at home moms. सो ये जो क्वेश्चन है जो कि एक स्टे एट होम मॉम के, वर्किंग स्टे एट होम मॉम के जहन में आता है कि हर रोज़ का एक ये क्वेश्चन होता है कि डिड आई डू इनफ। अब इस डिड आई डू इनफ में क्या कुछ कवर हो जाता है, जस्ट इमेजिन कि भाई वो माँ जो है क्या करी होती है, वो सुबह उठती है, ठीक है, यस, अपने वो प्रेयर्स ऑफर करती है, देन अगर बच्चे छोटे हों तो उनको जो है अटेंड करती है, कैन बी कि भी बच्चे उस एज ब्रैकेट में है व्हेन द मदर हैज़ टू गिव देम फूड या हैज़ टू गिव देम मिल्क, बट देन अगर बच्चे स्कूल गोइंग हैं देन द मदर हैज़ टू प्रिपेयर फॉर द ब्रेकफास्ट एंड देन गेट देम रेडी एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली जो छोटा बच्चा होगा वो खुद ब खुद तो तैयार नहीं हो जाएगा, वो भी माँ की ही ड्यूटी होगी, नॉट अनलेस एंड अनटिल कि जो लाइफ पार्टनर हैं वो इतना अकोमोडेटिंग हो कि वो कहें कि ओके आप जो है नाश्ता बना लें तो बच्चों को तैयार मैं कर देता हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी प्रोबेबिलिटी इसमें जो है ना बहुत कम है कि ऐसे जो है ना कोऑर्डिनेटिंग और फैसिलिटेटिंग लाइफ पार्टनर्स मिल जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द वुमन हु इज़ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड देन वो वुमन जो है इट्स नॉट नेसेसरी शी इज़ जस्ट अ स्टे एट होम मॉम, ये भी हो सकता है कि वो वर्किंग हो, उसने खुद भी अपना ऑफिस जाना हो, खुद भी प्रिपरेशन करनी हो, बट देन दिस इज़ द नंबर वन गिल्ट जो कि जहन में आती है पूरा दिन गुजारने के बाद कि डिड आई डू इनफ। अब उस इनफ में यू पीपल हैव अ वेरी विविड इमेजिनेशन एंड आई एम श्योर आप लोग इमेजिन कर लेंगे, और इट्स नॉट जस्ट इमेजिनेशन, आप हर रोज़ जो है एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अपने घरों में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, इफ़ दे आर वर्किंग, आप देख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग विच आई एम टॉकिंग आउट ऑफ द ब्लू, या कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर, कहाँ पर अटका, आई डोंट नो, कहीं पर अटकता है आसमान से गिरा खजूर में अटका, समथिंग लाइक दैट। बहरहाल मेरे प्रोवर्ब्स कैसे हैं तो यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी कि भाई ये प्रोवर्ब है तो उसको काइंडली सही तरह यूज़ करें। बहरहाल जहन में मेरे प्रोवर्ब है, जस्ट पुट इट टुगेदर। सो दिस इज़ द नंबर वन गिल्ट कि भाई खातून के जहन में पहली जो चीज़ आती है डिड आई डू इनफ, या फिर जो है, और फिर उसके बाद वो जो डिड आई डू इनफ
कहाँ पर जो है ना इट स्पाइरल अराउंड, वो स्पाइरल कर जाता है कि एम आई ए गुड मॉम एट ऑल। ये क्वेश्चन होता है जो कि खातून के जना जहन में मुसलसल चक्कर मारता रहता है। सो ये वाली जो सिनेरियो है कि एम आई गुड इनफ, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट कि भाई मॉम्स यू आर गुड इनफ और यू डोंट हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी। वाई डू आई से यू डोंट हैव टू फील गिल्टी? उसके लिए देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जो कि मैं आपको दूंगी और आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये जो गिल्ट है इसको गिल्ट ही रहने दें, रादर इसको जो है यू हैव टू एम्ब्रेस अपनी जो लाइफ है ना उसको गिल्ट में जो है ना कन्वर्ट करें, एम्ब्रेस करें लाइफ को। इवन इफ़ यू आर अ मॉम, ठीक है, यू हैव टू बी यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव टू बी थैंकफुल कि भाई अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए, ठीक है, एंड ही हैज़ पुट यू इन दैट पोजिशन कि भाई आप उन बच्चों को ग्रूम कर सकें। और ग्रूमिंग में जो है देयर आर सो मैनी थिंग्स। सो अगर आप जो है सारी जो लाइफ है, जो उनका पूरा बचपना है, उसको जो है एक अपने साथ गिल्ट एसोसिएट कर दोगे कि भाई एम आई गुड इनफ, एम आई डूइंग राइट या एम आई डूइंग दैट, तो बच्चे जो है उनकी जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है, दैट्स द होम। सो अगर होम से ही बच्चे के जहन में आप ये चीज़ डाल रहे हैं, यानी यू आर अपने आप को आप गिल्ट फील करवा रहे हो। सो जो बच्चे हैं वो यही देखेंगे कि भाई मदर इज़ ऑल द टाइम फीलिंग गिल्टी, तो उनकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है वो भी एक गिल्ट फॉर्म ऑफ वे में होगी। सो आपने एज अ गिल्ट फॉर्म ऑफ वे में नहीं उनकी ट्रेनिंग करनी, रादर यू शुड एलिवेट योरसेल्फ। जो उनका बचपना है, जो उनका ग्रूमिंग पीरियड है, उसको एक्साइटमेंट में जो है चेंज करें। और वो एक्साइटमेंट आप इसी तरह कर सकते हैं कि भाई आप हर चीज़ में उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें। सो उसके लिए आई एम जस्ट गोइंग टू स्टेट अ फ्यू एग्जांपल्स जो कि डिफरेंट जो है अंग्रेज़ लोगों की है, अंग्रेज़ लोगों की ज़िंदगियों से है, जिन्होंने ख़ुद जो है ये चीज़ें जो है एक्सपीरियंस की। ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी लोग भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं एंड दैट्स द रीज़न कि वी कम लाइफ, we discuss these things, we take inspiration from other people's lives and personal stories, and then बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ भी शेयर करते हैं कि जी हमारी लाइफ में ये कुछ चल रहा है। तो ये है कि we tend to learn from people's experiences. So this is the same topic जिसमें जो है I'm going to quote a few examples of people and you get that chance of learning from their lives. सो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, डोंट फील गिल्टी रिगार्डिंग दो स्पेशल थिंग्स। ओके जान जार, यदि आप कह रहे हैं योर जोक्स वेरी फनी, ओके यू थिंक माई जोक्स आर वेरी फनी। वैसे मैं जो जानबूझ के तो कोई जोक नहीं मेक करती, बस जोक बन जाता है। बट येस आई नो कि भाई मेरे जो प्रोवर्ब्स हैं और मेरी जो थोड़ी सी जो है स्लिप स्लॉप लैंग्वेज की वो है, उसकी वजह से जो है ना मेरे ख्याल है हमारी कन्वर्सेशन में चार चांद लग जाते हैं। मोहम्मद अदील, वालेकुम अस्सलाम, नाइस टू सी यू हियर मोहम्मद अदील। मनाहिल अख्तर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग। ओके, मनाहिल इज़ अ वेरी यंग चाइल्ड और ये बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची हैं, बट अदर देन दैट कि अच्छी और प्यारी बच्ची हैं, शी इज़ अ प्रोफेशनल डेवलपर। और आप इनकी एज पे ना जाएं, गो ऑन हर स्किल्स, गो ऑन हर एक्सपर्टीज़। सो अगर आपने वेब डेवलपमेंट या जो डेवलपर्स होते हैं वेबसाइट वगैरह, उससे रिलेटेड जो है कोई भी काम करवाना है, तो आई वुड हाईली रेकमेंड मनाहिल आप जो है इनका जो है आई एम श्योर इनके जो है लिंक पे चले जाएं। मनाहिल अख्तर के नाम से इनका जो है लिंक है, एंड डू कॉन्टैक्ट विद हर एंड डू गेट इन टच विद हर। शी इज़ जेम ऑफ अ पर्सन और जो इनका काम है उसकी तो जो है जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सो मैं ख़ुद भी जो है इनकी उम्र सीधा क्लाइंट हूँ, बट ये है कि ये बहुत ही प्यारी बच्ची हैं। सो फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू जिन का जो है डेवलपिंग का जो है काम होता है या कोडिंग से रिलेटेड काम होता है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद हर। सो दिस इज़ रिगार्डिंग मनाहिल। ओके, एंड यू नो व्हाट, अगर मैं जो मज़ीद बात करूँ, लेट्स गेट बैक टू माई टॉपिक। सो मैं थोड़ी डिटेल हो गई थी। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि भाई चाहे आप वर्किंग मॉम हैं, चाहे आप स्टे एट होम मॉम हैं, ये जो पिंच है ना, ये जो पेन है, ये हर कोई जो है ना इसको लाजमी फील करता है। और जहाँ तक मैं आपसे जो है
बात कर रही थी कि भाई यानी डिफरेंट एग्जांपल्स की, तो वंस जो है जो मिशेल ओबामा, आई एम श्योर आपने उनका नाम सुना होगा, once she stated a thing and she said कि भाई again उनको भी guilt थी, और वो guilt क्या थी कि when she was trying to balance ambition and motherhood, so she felt that guilt and she and what does her example remind us कि भाई आप जो है you cannot pour tea from an empty cup, right? सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल जो है समझ आ गई हो कि लाइक मिशेल ओबामा, शी इज़ अ पब्लिक फिगर एंड इवन like she's a professional person. Even when she was pursuing her career, when she wanted to do something, so she had to maintain a balance between motherhood and her professional career. So this is the same thing. We as Pakistanis, अगर हम चाहे पाकिस्तानी ख़वातीन की बात करें, तो we all the time are facing the same thing. हमें भी जो है, if we want to pursue a career, if we want to do something in life, तो we are juggling between roles, ठीक है. और वो जो रोल्स हैं वो मल्टीटास्किंग के रोल्स हैं. एक तरफ जो है जिस तरह आई हैव आस्क्ड यू, नॉट टोल्ड यू, आई हैव आस्क्ड यू कि आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करें कि हम किस तरह रोल्स में जो जगल कर रहे होते हैं. वी आर प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट, वी आर डूइंग द क्लीनिंग, द blah blah blah, there are so many things to do in the home. अगर मैं यहाँ पर जो है लिस्ट बनाना शुरू करूँ तो मेरा टॉपिक तो बीच में ही रह जाएगा. सो जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, अपनी अम्मियों को जो है इमेजिन करें कि भाई जब आप लोग काम कर रहे होती हैं बीइंग अ बंदा, तो आपकी जो बीवियाँ होती हैं, अम्मियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, व्हाट आर दे डूइंग? वो घर के कोई ना कोई काम कर रही होती हैं. बट देन देयर आर अदर द सेम, ये सेम ही जेंडर होते हैं जो घर के कामों के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होती हैं. सो फॉर दैट वी हैव टू बी ओपन रादर देन कि हम इनको गिल्टी फील करवाएं कि भाई आप जो है अपने कोई प्रोफेशनल करियर जो है परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं तो यू आर बीइंग सेल्फिश. नो, दे आर नॉट बीइंग सेल्फिश, रादर इट्स द अदर वे अराउंड हु इज़ बीइंग सेल्फिश. सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस. सो रादर देन आप उनको गिल्टी फील करवाएं, यू आर द वंस हु शुड फील गिल्टी कि भाई एक बंदा जो है कितनी मल्टीटास्किंग कर सकता है. वो बीवी का रोल भी अदा करे, वो बेटी का रोल भी अदा करे, वो बहन का रोल भी अदा करे, वो जो है और किसका रोल अदा करे. देयर आर सो मैनी अदर रोल्स. वो जो है क्या कह सकते हैं, वो भाभी का रोल भी अदा करे. और क्या, और कौन से रोल्स होते हैं? खैर पाकिस्तानी फैमिलीज़ में तो बहुत रोल्स आ जाते हैं, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी वो सिंगल फैमिली हो, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है. तो जॉइंट फैमिलियों में तो बहुत रोल्स हो सकते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दोज रोल्स एज वेल. आप लोग खुद बेहतर तरीके से यहाँ पर मुझे लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि भाई एक औरत के क्या क्या रोल्स होते हैं. ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग. सो ये मिशेल ओबामा की मैंने आपको एग्जांपल दी है. अच्छा, अगर मैं जो हूँ मज़ीद बात करूँ कि लेट्स सी, लेट मी गेट बैक टू माई पॉइंट्स जो कि ऊपर नीचे कहीं हो गए हैं. ओके, यू नो व्हाट, जो हमारा सोशल मीडिया है ना, व्हाट इट्स डूइंग, वो जो है औरत को एक परफेक्ट रोल में जो है प्लेस करे. परफेक्ट मॉम है, ओ भाई ये परफेक्ट मॉम है. भाई रियलिटी में परफेक्ट मॉम नहीं होती. रियलिटी इज़ वेरी रॉ. रियलिटी में जो मदरहुड होता है इट्स वेरी रॉ, इट्स वेरी क्रूड एंड इट्स वेरी ओपन. ठीक है. सो जिन्होंने जो है वो रॉ फॉर्म देखी हुई है ना मदर की, तो दे आर नेवर गोइंग टू से कि हाँ भाई परफेक्ट मॉम होता है, परफेक्ट मदरहुड होता है. देयर इज़ नथिंग एज सच परफेक्ट. ठीक है. सो हम सब जो है ना अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. वी कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग, वी कीप ऑन डूइंग थिंग्स एंड वी try to bring up our kids in the best possible way. This is what real motherhood looks like. So this is not a perfect mom जो कि मीडिया प्रेजेंट करता है. मीडिया में तो जो है देखें, मीडिया क्या प्रेजेंट करता है कि अभी आज बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और अगले दिन जो है ना औरत जो है ना पतली जो है पतली पतंग हो गई. ठीक है, छुरी बन गई पतली पतंग होकर. In reality this does not happen. When you give birth to a child, you can never return to your normal self. और वो जो अपने normal self पे return होते हैं, that's again a probability. Those chances are very rare. क्योंकि
द रॉ मदरहुड में यू आर प्रोन टू एवरी काइंड ऑफ स्कार, ठीक है, यू कैन सी दो स्कार्स अपेरेंटली, येस क्लोथ्स जो आपने कपड़े पहने होते हैं उन पे तो किसी को स्कार नहीं नज़र आते ना, जितने स्कार्स होते हैं इट्स अंडर द क्लोथ्स, बट दिस इज़ अगेन समथिंग जिसके लिए जो है मदर्स गिल्ट फील करती हैं, एंड दे शुडंट फील गिल्टी, क्योंकि यू नो दे आर embracing that you know childhood, and they are embracing the lives of children, so वो उसको embrace करती हैं, उसको खुश होती हैं, खुशी उनको मिलती है. So this is the thing I'm talking about. मीडिया जिस तरह प्रोजेक्ट करता है ख़ातून को परफेक्ट मॉम की कंडीशन में, there is no such thing as perfection, so everything is crude and everything can be seen. If you have good life partners, they can see कि भाई किस तरीके से जो है ना वो आपको किस तरीके से जो है you know क्रश करता है किस तरह, but then again आपके if you have a life partner who is facilitating and who is you know who is always there for you, तो ये चीज़ें उनको भी मैटर नहीं करती. तो ये जो एक you know एक टारगेटिंग जो है स्टीरियोटिपिकल इमेज बना दिया गया है मीडिया में कि भाई दिस इज़ हाउ अ वुमन शुड बी, दिस इज़ हाउ अ मैन शुड बी, और ये जो ड्रामे हैं जो उन्होंने जो है अन मचाई हुई है और ख़राबियाँ पैदा करनी शुरू की हुई हैं, तो मेहरबानी करके स्टॉप सीइंग दीज ड्रामाज, क्योंकि इन्होंने जो है सिर्फ ख़राब करना है, आपको भी ख़राब करना है, आपकी नस्लों को भी ख़राब करना है. सो डोंट यू नो गो इन टू द निटी-ग्रिटीज ऑफ दीज ड्रामाज. उन्होंने तो अपनी बिकाई करनी है, दे आर ऑल वर्किंग ऑन कमर्शियल बेसिस, सो दे आर डूइंग दीज थिंग्स. तो आपने जो है एक नेचुरल माहौल में रहना है, एक रियल लाइफ सिनेरियो में रहना है. डोंट गेट इनटू दीज खामखा की चीज़ें जो कि मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है. ओके, सो जो मिथ है परफेक्ट वुमन की, परफेक्ट मदर की, वो भी मैंने आपको बता दिया है. अच्छा, देन अगेन अगर मैं जो हूँ यानी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ तो जो क्रिस्टी टेगन थी, उन्होंने भी अगेन शी स्पोक पब्लिकली अबाउट बीइंग जज्ड फॉर, और वो क्यों उनको जज किया गया था कि लाइक शी हैड हर चाइल्ड एंड देन शी वेंट आउट, मे बी थोड़े टाइम के लिए जो है बाहर निकली होंगी, कोई हवा लेने के लिए निकली होंगी, कोई जो है यू नो शी वांटेड टू फील लाइफ, एंड देन शी वाज क्वेश्चन अबाउट दैट. देन सो आई से कि भाई don't you know just putting yourself in the person's shoes, you are able to imagine कि भाई किस कदर जो है कोई बंदा सफोकेट फील कर सकता है जब you know खामखा जो है we try to put you know different things onto people, चाहे आप जो है खातून हैं, चाहे आप बंदे हैं, but then if you are a stay at home mom या even if you are a working mom, तो ये जो गिल्ड्स हैं ये गिल्ड्स मार देते हैं. अगर कोई जो है लाइक सिर्फ खुली हवा लेने के लिए बाहर चला गया है, इवन अगर कोई वॉक करने के लिए चला गया है, क्योंकि मैं जो हूँ मदर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, स्टे एट होम मॉम्स के और वर्किंग वुमेन के हवाले से बात कर रही हूँ कि ये वो गिल्ड्स हैं जो उनको होती हैं कि अगर कोई अपनी सेहत के लिए भी जो है कुछ काम करा है तो उस पर भी उसको गिल्ट होगी कि भाई ये जो मैंने 15-20 मिनट अपने लिए ले लिए हैं, तो ये मैंने जो है टाइम तो नहीं अपना जो है बच्चों का मार लिया, या ये मैंने सेल्फिशनेस का मुजाहरा तो नहीं किया. सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको एज अ वुमेन भी सोचना है, आपको एज अ मैन भी सोचना है, आपने अपने रिलेशनशिप्स में भी ये चीज़ें सोचनी हैं कि भाई ये चीज़ें गिल्ट में नहीं आती हैं. आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ की फैक्टर. सो डोंट फील गिल्टी रिगार्डिंग दीज थिंग्स कि भाई मैंने ये टाइम अपने लिए ले लिया तो मैंने सेल्फिशनेस का मुजाहरा किया. आपने बिल्कुल सेल्फिशनेस का मुजाहरा नहीं किया. आज अगर आप अपने लिए टाइम नहीं लेंगे तो कल को जो है यही जो आपके हेल्थ फैक्टर्स हैं ये आपके आड़े आ जाएंगे, और वही औलाद जिसके लिए आप इतने तगोदो कर रही हैं, इतने स्ट्रगल कर रही हैं, वो यू नो दे आर नॉट गोइंग टू यू नो इंजॉय द बेस्ट ऑफ यू. सो अपना अगर आपने बेस्ट उनके साथ जो है पुट इन करना है तो आपको अपनी सेहत पे भी तवज्जो देना होगा. ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग. अच्छा, फिर अगर जो है ना यानी अगर मैं गिल्ट की बात करूँ तो गिल्ट जो है ना इट कैन बी अ साइन ऑफ लव, और बट इट इज़ ऑल्सो अ साइकिल टू ब्रेक. और गिल्ट भी देखें उन्हीं को होता है ना जिनको जो है अपनी आल औलाद से मोहब्बत होती है, या वो अपने इर्द गिर्द जो है अपने फैमिली से मोहब्बत करते हैं, तभी तो उनको गिल्ट होता है कि भी हमने ये काम कर लिया, हमने ये टाइम अपने ऊपर जो इन्वेस्ट कर लिया,
तो ये हमारी फैमिली का जो है ये नुकसान ना हो गया हो। बट इसको जो है ना गिल्ट फैक्टर में नहीं लेना चाहिए। येस, एज अ मदर अल्लाह ने वैसे ही औरत में जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत का एलिमेंट डाला हुआ है, और व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली, तो ये मोहब्बत का जज्बा बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी औरत में। तो यह है कि इसको जो है ना अगेन इसको गिल्ट नहीं बनाना चाहिए, बट एट टाइम्स येस यू हैव टू ब्रेक दिस गिल्ट, और आपने अपने ऊपर भी तवज्जो देनी होती है। और देन जो होते हैं ना व्हेन यू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस गिल्ट, तो इसका फ़ायदा पता क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि यू आर एबल टू मॉडल योर सेल्फ वर्थ। आपको समझ आ जाती है भाई आपकी क्या सेल्फ वर्थ है। एंड देन एट द सेम टाइम जो आपके बच्चे होते हैं ना उनको भी नज़र आ जाता है कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर देम। और मैं जो फील करती हूँ, मैं एट टाइम्स फील करती हूँ कि मदर्स अगर कोई काम कर रही होती हैं तो वो बच्चों को जो है ना अलूफ रखती हैं, जबकि आई थिंक कि जो बेस्ट है ना, इफ़ यू वांट टू एम्ब्रेस द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन विद एक्साइटमेंट, और एंड यू वांट कि भाई हर चीज़ जो है ना एक बैलेंस में चले, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपने बच्चों को चीज़ों में इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं। नाउ आई रिमेंबर कि व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ जेंडर कंसल्टेंट, और उस टाइम पे जो है मेरी जो है बच्ची जो है बहुत छोटी थी। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मॉर्निंग टाइम में मेरे हस्बैंड जब मुझे ऑफिस ड्रॉप करते थे, तो मैं जो हूँ सुबह उठ के अपनी बच्ची को जो है तैयार करती थी, चेंज करती थी, उसको फीड वगैरह कराती थी, फिर नाश्ता लंच जो भी था वो सब करके व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं उसको अपने साथ ऑफिस लेकर जाती थी। एंड देन मेरे हस्बैंड मुझे ऑफिस में ड्रॉप करके फिर मेरी बेटी को जो है ही वुड ड्रॉप टू माई पेरेंट्स हाउस, एंड देन वो ऑफिस जाते थे। एंड द सेम वाज द रूटीन कि वापसी में जो है वो फिर पहले मेरी बेटी को पिक करते थे, फिर मुझे ऑफिस से पिक करते थे, एंड देन वी वुड गो टू होम। सो वो पूरा दिन जो है ना हम लोग ऑफिस में जो है खज्जल खवारी काट के फिर एट द एंड ऑफ द डे घर जाते थे। सो दिस वॉज माई रूटीन इन माई अर्लियर करियर व्हेन आई वॉज वर्किंग। बट देन मुझे कभी आर फील नहीं हुई। हालांकि मेरा जो ऑफिस था इट वाज सेमी गवर्नमेंट in the sense it was partly it was private, partly it was public, but then it was the kind of office जहाँ पर जो है there was not a day care। और हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पर डे केयर की फैसिलिटी ही नहीं होती। एंड जो बॉसेस होते हैं उनका जो है माइंडसेट ये होता है कि भाई अगर बच्चे हैं तो इट्स नॉट आवर हेडेक, तो इट्स योर ओन हेडेक, आप उनको जहाँ पर भी छोड़ो जो भी करो। So there is a lot of stress when you are a working woman and you have kids, and you have to take care of your kids, क्योंकि at the same time you want to provide the best to them। So जो working mothers हैं या जो working women हैं, don't feel this guilt। ये वो scenario है जो हर एक में face करना होता है। But then there are institutions जहाँ पर डे केयर होते हैं, एंड दे डू प्रोवाइड डे केयर कि भाई आप अगर जो है ऑफिस में हैं तो आप देयर इज़ अ डे केयर इन द ऑफिस, वहाँ पर आप अपने बच्चे को जो है छोड़ सकते हैं। एंड देन अब तो खैर टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि अगर आप कोई नैनी भी हायर करते हैं, यू कैन ऑलवेज पुट द ऐप इनटू योर मोबाइल, एंड यू कैन कीप ऑन लुकिंग कि भाई आपके जो है ना जो डे केयर है उधर क्या चल रहा है, आपका बच्चा जो है वेल ग्रूम्ड है भी, उसको सही तरीके से टेक केयर भी की जा रही है। बट मैं जिस टाइम की बात कर रही हूँ हमारे टाइम में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो एज अ मदर आई वुड टेक माई चाइल्ड टू द ऑफिस, एंड देन देयर वर टाइम्स जब मुझे जो है स्टे बैक करना पड़ता था ऑफिस में, और कुछ ऐसे दिन भी होते थे जब बच्चे बीमार होते थे, एंड आई यूज्ड टू टेक देम टू द ऑफिस। एंड इट वाज येस व्हेन आई रिमेंबर दोज टाइम्स, मैं यही सोचती हूँ कि शुक्र है बच्चे छोटे ही थे, क्योंकि इट्स इट्स हेल ऑफ अ जॉब कि यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन योर चाइल्ड हु इज़ इल। एंड what, एक टाइम ऐसा भी था when I was into the same office, every day was you were juggling। so every day जो है ना you could reflect every day कि भाई क्या हो रहा है, कि what is going on, do I want this, do I want this kind of future for my child। well वो जो पीरियड था that was
गुजर गया वो पीरियड. आई लर्न अ लॉट एंड आई एम स्टिल थैंकफुल कि आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद द with the private sector, with the ADB and the government of Punjab, and working for the sustainability of people. So that was a good period in my life. Being married, जो चीज़ें मैंने फेस की उधर वो भी मुझे जो समझ आ गई. सो यू नो यू कीप ऑन लर्निंग. आप ये नहीं कह सकते कि भी दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली यू नो आप के मुताबिक जब चीज़ें नहीं चलती तो यू डू फील बैड कि भाई ये चीज़ें उस तरह वर्कआउट नहीं कर रही. बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू लर्न सो मच. एंड अब तो मैं फील करती हूँ कि अब तो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि यू कैन अवेल ईच एंड एवरी थिंग. बैक देन तो ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. सो अगर जो है मॉम स्टिल इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी गिल्टी फील करती हैं तो देन लेडीज़ देयर समथिंग रॉन्ग विद यू. यू नीड टू बी गिल्ट फ्री, क्योंकि अब तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब तो गिल्ट वाली कोई बात ही नहीं रह जाती. अच्छा, लेट मी टेक योर कमेंट साइड बाय साइड, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत से आपके कमेंट्स हैं जो कि ओवरसी कर दिए हैं. लेट मी सी, लेट्स सी. जान यार अली आप कह रहे हैं योर स्माइल ऑल्सो अप एंड डाउन. हाँ 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 हाँ. अच्छा, पता नहीं, आई डिडंट नो दैट माई स्माइल अप एंड डाउन है. अच्छा, और आप कह रहे हैं बट आई ब्लॉक्ड मैनी पीपल हु सेंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो. दैट इज़ रियली नाइस. भाई देखें, अगर जो है आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन अ सिंपल थिंग कि भाई यू आर वर्क फोकस्ड, तो ऑब्वियसली फिर अगर टेढ़ी मेढ़ी वीडियोस आ जाएं या टेढ़े मेढ़े लोगों के कमेंट्स आ जाएं तो फिर ऐसे लोगों के साथ आपने क्या कम्युनिकेशन करनी है. आपने तो जो है अपने काम से काम रखना है ना. अगर आपका जो है अटेंशन इधर से उधर हो जाएगी तो फिर आपका काम तो बीच में ही रह जाएगा. सो यू कांट यू नो टेक दैट रिस्क, क्योंकि 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे मेरे पास हैं, और इससे ज़्यादा हमें घंटे कोई नहीं देगा. और 24 घंटे का जो टाइम है उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा. फिर 24 घंटे को आप 48 घंटे किस तरह बनाएंगे, 2 दिन गुजर जाएंगे. ओके ओके, मोहम्मद यासीन, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी इनटू माय सेशन. Okay, let's see. Oh, and Jan Jarali, you're saying you were faculty member in your early days. Yes, I did some time in the university. I used to teach in the university जहाँ से मैंने graduation, post graduation किया था. I was a lecturer over there, और मैं masters की ही classes लेती थी. I was वन ऑफ दी यू नो स्टूडेंट्स जिसने अपने फ्रेशली मास्टर्स करके आगे मास्टर्स क्लास को ही जो है पढ़ाया है. सो दैट वाज अ वेरी गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ, और मुझे जो है वो टाइम अभी भी याद आता है. इससे शायद इसी वजह से जो है आई स्टिल टीच इन दिस फॉर्म, क्योंकि आई जस्ट लव्ड टू टीच बैक देन एज वेल. सो अभी भी मैं जो कुछ करती हूँ उसमें कहीं ना कहीं मुड़ धोड़ के टीचिंग एलिमेंट आ ही जाता है. ओके, सो गेटिंग बैक टू माई टॉपिक, कि अगर जो है मैं बात करूं कि भाई अगर आप जो है फ्यूचर को एम्ब्रेस करती हैं तो दैट डज़ नॉट मीन कि आप पास्ट को अबेंडन कर रहे हैं. क्यों मैं ये बात करती हूँ कि भाई जो पर्सनल ग्रोथ होती है ना, ये जो है इट डज़ नॉट मीन कि भाई यू आर लीविंग योर चिल्ड्रन बिहाइंड. अब मैं चूँकि मॉम गिल्ट की बात कर रही हूँ ना, तो मॉम गिल्ट में जो है अक्सर जो है ये गिल्ट आ जाता है कि भाई अगर मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ पे तवज्जो दे दी तो मैं जो हूँ शायद बच्चों को पीछे छोड़ रही हूँ, या ये है कि आई एम नॉट बीइंग अ गुड मदर कि मैं जो हूँ बच्चों से हट के जो है अपनी जो है ग्रोथ पे फोकस कर रही हूँ. सो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि भाई thinking about your self growth, it's not abandoning your children, rather you know it's a way forward. आप वो बच्चों को वे फॉरवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग तो आप इस माइंडसेट के साथ कर रहे हैं कि भाई कल को मेरे बच्चों का जो है फ्यूचर स्टेबल हो, या मेरे बच्चे जब इस जो है स्टेज में आए तो दे हैव दीज यू नो दे हैव अ रोड मैप इन फ्रंट ऑफ देम. और वो बच्चे जो कि पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं या काम करते हुए देखते हैं, दे आर द वंस हु आर लर्निंग फ्रॉम देयर लाइव्स, फ्रॉम द पेरेंट्स लाइव्स, और वो उसी तरीके से जो है अपनी लाइफ भी उस डायरेक्शन में लेकर चलते हैं. दे नो दे हैव अ पर्पस. दे नो कि भाई मेरी जो मदर है, she was not just a stay-at-home mother. She used to do this. She used to, you know, learn different skills, and then she would apply different skills in different areas. ये मैं जो I'm not just talking about myself. I'm talking about every other woman who is a stay-at-home mom.
या जो रिमोट वर्किंग सेटअप में है, या जो अपने करियर गोल्स को लेकर जो है सीरियस है और वो उसके लिए जो है कुछ ना कुछ कर रही हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक बोथ एंड्स मीट्स। अगर जो है नहीं भी मीट करे तो स्टिल दे आर ट्राइंग कि वो मीट करें, क्योंकि अब जो सिनेरियो है इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिनेरियो। जो इकॉनमी है इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट इकॉनमी। सो ये वो इकॉनमी नहीं रही जहाँ पर जो है घर का एक बंदा अगर कमा रहा हो तो पूरा घर जो है खुशी खुशी बैठ के खाएगा। ये वो इकॉनमी हो गई है जिसमें घर में अगर जो है 5 अफराद हैं तो 5 के 5 जो है काम कर रहे होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी प्रैग्मेटिक एज वेल। अगर आप ये सोचें कि भाई एक बंदे की जो है तनख्वाह से गुजारा हो जाएगा, भाई आप तो उसको चूज़ दोगे ना, वो क्या बनाओगे उसको चूज़ के, जिस तरह आम को चूज़ के जो है क्या बनाते हैं, अम्बी बना देते हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली आम का जब सारा जूस चूस दोगे तो अम्बी बन जाएगी ना वो। तो आपने जो है अपने जो बेटर हाफ है उसकी अम्बी नहीं बनानी, ठीक है, अमचूर नहीं बनाना उसे, यस आई गेस दैट्स द वर्ड। सो वो नहीं आपने उसका बनाना, आपने उसके साथ जो है यू हैव टू stand beside him, side by side, and you have to do something। आपकी स्किल्स हैं, उन स्किल्स को यूटिलाइज करें। आपकी कोई भी जो है कोई टैलेंट है उसको यूटिलाइज करें, साथ खड़े हों अपने जो है लाइफ पार्टनर के। रादर कि आप ये सोचें कि ओहो मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, चलो मैं जो हूँ किसी को जो है ढूंढती हूँ जिसको जो है ना मैं जो हूँ जिसका मैं अमचूर बना दूँ। सो गर्मियों में जो है जब मैंगोज़ आते हैं तो बहुत से घर हैं वहाँ पर ये जो है एक ट्रेडिशन होता है कि वो आमों को जो है ना उनका रस निकाल के, गुद्दा सारा निकाल के, दे जस्ट पुट सॉल्ट एंड चिलीज़, और फिर कोई पराठे के साथ खाता है, कोई रोटी के साथ खाता है। सो आपने अपने बेटर हाफ का वो नहीं बनाना, आम का, यस उसको क्या कहते हैं, आम का छुच्छा। आपने आम का छुच्छा नहीं बनाना अपने पार्टनर का, आपने उसके साथ मिलकर काम करना है। So this is how you are going to embrace the future, and this is how you are going to train your children कि भाई आप काम कर रहे हैं, आपको बच्चे देख रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं इन लाइफ, एंड दे हैव अ डेफिनेट पर्पस। दे नो कि भाई ओके हमारे पेरेंट्स इस प्रोसेस से गुजरे थे, एंड दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ रियलिटी। अगर आप बच्चों को सिर्फ ये माइंडसेट देंगे कि खुद को गिल्टी फील करवाते रहेंगे और बच्चों को ये माइंडसेट देंगे कि भाई मैं हूँ ना, तो मैं हूँ ना, तो वहीं पर जो है ना वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सो ये इंप्रेशन बच्चों को नहीं देना, बच्चों को अपने साथ हर फील्ड में लेकर चलना है। मुनव्वर हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। ओके जान यार अली, आप क्या कह रहे हैं, दैट्स बेटर ऑप्शन, ब्लॉक और नीड अंडरस्टैंड एंड गाइडिंग व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस, प्लीज़ गाइड मी। जान चाह रही, आई वुड से कि भाई जो लोग जो है ना आपके प्रोफेशन के साथ या आपके जो है माइंडसेट के साथ जो है कोलैबोरेट नहीं करते, ट्यून नहीं करते, जिनके मैसेज देखकर जो है ना आपको गुस्सा आता है उनको ब्लॉक कर दें। जिनका मैसेज देखकर आपको खुशी होती है उनको ब्लॉक ना करें। देखें वो जो है आपको कोई दानाई की बात सिखा सके या आप उनको कोई दानाई की बात सिखा सके, तो उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। बट येस, डोंट वेस्ट एनी वंस टाइम, क्योंकि हर एक का जो टाइम है वो बहुत प्रेशियस होता है। टाइम जो है वापस नहीं आ सकता, टाइम ही है हमारे पास जो कि वापस नहीं आ सकता। ना टाइम आ सकता है ना सेहत आ सकती है। सो मेक द बेस्ट ऑफ द टाइम, सो टेक द टाइम बाय 4 लॉक्स, दैट्स द करेक्ट प्रोवर्ब, जो कि इंग्लिश का है इसलिए मुझे आता है। अगर उर्दू का या पंजाबी का होता तो पता नहीं, मैं इसका जो है ना शलवार का पोंचा कहीं लगा चुकी होती और कमीज़ के स्लीव कहीं लगा चुकी होती है। सो ओके, गेटिंग बैक टू माई टॉपिक। मज़ीद मैं आपको इसमें जो है क्या ऐड कर सकती हूँ कि भाई ओके, अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि जो वर्किंग मॉम्स होती हैं उनके अराउंड क्या गिल्ट्स होते हैं एंड हाउ डू दे फील। सो यू शुडंट फील गिल्टी, दैट्स वन थिंग जो कि मैं हर मॉम से कह सकती हूँ और कहना चाहूँगी। एंड देन आई वुड वांट टू से कि भाई अपने बच्चों के साथ ओपन टॉक किया करें। ये जो आप कुछ चीज़ें बच्चों से छुपा लेते हैं, कुछ चीज़ें उनको बता देती हैं, यू नो व्हाट, यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज एट टाइम्स। जब आप बच्चों से मशवरा लेंगे, आप उनसे पूछेंगे एंड दे आर गोइंग टू टेल यू थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज कि भाई ये चीज़ें तो हमने बच्चों को बताई भी नहीं और बच्चों को पता है। सो डोंट थिंक कि चिल्ड्रन आर स्टूपिड, दे आर इनोसेंट तो वो होते हैं बट दे आर नॉट स्टूपिड एट ऑल। वो जो है हर चीज़ देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं, और अब के जो बच्चे हैं दे आर मच मोर वाइजर देन अस।
सो अपने बच्चों को जो है नेवर अंडर एस्टिमेट देम। जिस तरह आपको बुरा लगता है ना कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, इन द सेम वे अपने बच्चों को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, उनसे ओपन टॉक करें। जितना आप उनके साथ ओपन टॉक करेंगे, जितना आप उनके साथ फ्रेंडली माहौल रखेंगे, जितना आप उनमें जो है ट्रस्ट जो है कन्फाइड करेंगे, उतना ही वो आपको भी ट्रस्ट करेंगे, आप में भी कन्फाइड करेंगे। एंड यू नो जो बच्चे होते हैं, यू नेवर नो कि वो आपको किस तरह इंस्पायर कर रहे हैं या वो आपसे किस तरह इंस्पिरेशन ले रहे हैं। सो दैट यू ओनली लर्न व्हेन यू टॉक विद देम। सो आधी बात उनको बताएं, आधा छुपाएं, तो बच्चे आर गोइंग टू असेस देमसेल्व्स एनीवे कि भाई फैक्चुअल क्या पोजीशन है। एंड यू नो देयर वाज अ टाइम लाइक हमारा जो टाइम था जब मैं बच्ची थी, तो मैं भी कभी बच्ची थी, हाँ आई फील सो, अच्छा ठीक है, नहीं मैं बाकी बच्ची थी। सो आई रिमेंबर कि हमें जो है जब कोई पेरेंट जो है कोई बात कहता था तो वी यूज टू बिलीव कि हाँ भाई जो पेरेंट कह रहे हैं सही कह रहे हैं, एंड वी वुड नेवर यू नो डाउट कि भाई पेरेंट ये बात कर रहे हैं, हो सकता है वो गलत बात कर रहे हो। बट अभी जो बच्चे हैं दे, आप उनको कोई बात कहते हो तो दे आस्क फॉर लॉजिक, दे आस्क फॉर एविडेंस, एंड देन इफ़ यू आर अनएबल टू कम अप विद दैट एविडेंस, वो आपको खुद एविडेंस देते हैं कि अम्मी आपने ये बात की, अब्बू ने ये बात की, आप जो है इस चीज़ पे गुस्सा हुई, अब्बू इस चीज़ पे गुस्से हुए, तो आपने ये बात ज़्यादा कर दी तो अब्बू ने ये बात कम की। सो दे कम अप विद सो सोफिस्टिकेटेड लॉजिक एंड एविडेंस। सो एज अ पेरेंट, start trusting your children, start trusting in their capabilities, they are much more wiser। वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, आप तो एज अ पेरेंट सिखाते ही हैं, पर उनसे भी आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। अब्दुल सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आप मुझे हमेशा अच्छी बातें ही करते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, सो दिस इज़ अनदर थिंग कि भी अपने बच्चों से ओपनली बात करें, वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, वो आपको बहुत कुछ जो है सिखा जाएंगे जो कि शायद आपने आपके जहन गुमान में ही ना हो कि भाई ये बात बच्चा मुझे कह सकता है। सो नेवर थिंक दिस थिंग कि भाई बच्चा छोटा है तो वो जो है अपने जहन के मुताबिक आपको चीज़ें जो है सिखाएगा। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम टू लर्न, सो लर्न फ्रॉम दैट, लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन। और देन अगर मैं जो हूँ इन द एंड जो है एक दो पॉइंट्स जस्ट कवर करना चाह रही हूँ, क्योंकि आज मैं इतने अरसे बाद आई हूँ तो सेशन बहुत लंबा हो गया एंड आई नो आई कैन फील इट। सो थैंक यू सो मच जो कि अभी तक मेरे साथ स्टिक अराउंड कर रहे हैं। और अगर आपको लगा हो कि भाई मैंने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड की है तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और मुझे कोई आप लाइक भी कर सकते हैं। और अगेन सिंस फेसबुक पे भी मेरे लाइव चर्चा होते हैं, सो इफ़ यू लाइक माई वैल्यू added content, so you can always give me stars on Facebook. So you know what, in the end I would say कि भाई अपने आप को जो है ना हर रोज़ forgive करने की आदत डालें, क्योंकि you know guilt feel करने से जो है ना it's not an option, don't feel guilt। you should remember कि every day जो है every day brings us challenges and we have to tackle those challenges। हर दिन का मुख्तलिफ चैलेंज होता है, हमने उस चैलेंज को फेस करना होता है, उसको टैकल करना होता है और उसका कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। और आई एम श्योर कि जो काउंटलेस मॉम्स हैं जो कि अराउंड द वर्ल्ड भी काम कर रही हैं, वो भी ये चीज़ें फील करती हैं। और एंड चूँकि ये टॉपिक जो है ही स्टे एट होम मॉम्स के बारे में या उन मॉम्स के बारे में जो गिल्ट फील करती हैं कि अपने पे तवज्जो दे रही है तो हम उस फेज़ में जो है शायद बच्चों को इग्नोर कर दिया है। सो स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, क्योंकि आज जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, ये भी आगे जाकर बच्चे की ही बेहतरी के लिए आप कर रहे हैं। एज पेरेंट्स ये एक समथिंग जो है ना, समथिंग इट्स गॉड गिफ्टेड, आप में ये जो है ना सीड परोया हुआ है कि यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि किस तरह आप अपनी फैमिली को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं या बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं। और देन सेम कि भाई आप जो है हर चीज़ में अपने बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करें जो उनकी एज है। अब की जो जब बच्चे टीन्स में आ जाते हैं या इवन छोटे भी होते हैं तो उन्हें डिफरेंट छोटे छोटे चोर्स दें। जब टीन्स में हैं तो उनको जो है लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो है एक्सपोज करना शुरू करें, उनको जो है इंटर्नशिप्स करवाएं, डिफरेंट लोगों के साथ इंटर्नशिप्स करवाएं। यस, ऐसे लोगों के साथ करवाएं जिनको आप ट्रस्ट करते हो, जिनको आपको पता हो कि ये उनको कोई दानाई की बात सिखाएंगे, ये नहीं ऊपर ऊपर से जो है खाना पूरी करेंगे। जिस तरह बहुत से इंस्टीट्यूशंस करते हैं, वो सिर्फ खाना पूरी करते हैं, पैसे ले लेते हैं और एट द एंड ऑफ द डे कोरा कागज़ ही बाहर निकलता है।
सो आपने बच्चों को कोरा कागज़ नहीं बनाना, यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर लाइफ। और लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है, ऑन ग्राउंड जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ उनकी इंटर्नशिप करवाएं, उनको एक्सपोज करें उस माहौल के साथ, चाहे वो अच्छा माहौल है, चाहे वो बेसिक माहौल है। अगर जो है आपके बच्चे में जो है सोशल वर्क का जो है जज्बा है तो उसको ग्राउंड में भेजें, उससे फील्ड वर्क करवाएं, ताकि उसको पता हो कि कल को अगर मैंने ये राह चुननी है। एंड आई वुड से कि जो एजुकेशन की राह होती है, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट रोड, बट यू नीड टू हैव दिस पैशन ऑफ एजुकेटिंग पीपल, पैशन ऑफ एम्पावरिंग पीपल। और इसको एम्पावर करने के लिए आपको हर तरह का माहौल बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अपने बच्चों में भी वो माहौल डालें, उसकी आदत उनको डालें, ताकि वो जो है एसी के माहौल से निकलें। एंड यू नो देयर सो मेनी थिंग्स, ब्लू कॉलर्स जॉब्स के पीछे जाएं या यू नो दिस एंड दैट, उसके पीछे जो है भाग कर जो है अपना फ्यूचर ना ख़राब करें। मेक देम सेल्फ रिलायंट। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन टुडेज सेशन। और अगर आपको जो है आज का सेशन अच्छा लगा हो तो एज आई सेड कि यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ऑलवेज लेट मी नो कि भाई आपको जो है क्या चीज़ अच्छी लगी मेरे सेशन में, या अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो क्या चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगी, और क्या चीज़ है जो आप चाहेंगे कि मैं इम्प्रूव करूँ अपने सेशंस में, और आपको जो है मज़ीद जो है रियल लाइफ सिनेरियोस के साथ जो है डिस्कस कर सकूँ डिफरेंट टॉपिक्स को। सो यू कैन ऑलवेज लेट मी know these things. And right now I can't see anyone at the top of my screen, so I'm just going to call it a day. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा and I'll try कि मैं कल भी सेशन करूँ. Since काफ़ी दिनों से मैं जो हूँ एब्सेंट हो रही हूँ ना, तो एब्सेंटी लग गई है ना काफ़ी दिनों की, सो ज़रा उस एब्सेंटी को कम किया जाए. टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दवाओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.